فوٹو لگاتے ہی آپ نے ایکنالج کیا ایگزسٹنس آف دیٹ اوتار، تو یہاں آپ نے شرک کر دیا. اور شرک جو ہے وہ سورہ لقمان کی 13 نمبر کی آیت کے انوسار گناہ عظیم ہے، تو آپ نے ظلم العظیم ہے، تو آپ نے ظلم العظیم کر دیا. اب آپ کو مطلب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا، اور آپ ہوتے ہیں جہنم میں، اور آپ اور میں ایک ساتھ جہنم میں چلیں گے. تو آئیے آج دوستی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اب ساتھ ہی رہنا ہے. ایک سوال، ایک لائن بولو. یہ دیکھیے اس کی بدتمیزی. آپ وہ ہے نا جو اہل قرآن اس دن وہ وقاص کے ساتھ آپ یہ کر رہے تھے، وہ کس کے ساتھ میں؟ ہاں وہ میرے چینل میں آپ آئے تھے، تبھی میں سوچوں کہاں آواز بھی سنا. جی ماننی منافق، ماننی بولتا ہوں لیکن چلیے بولیے. ارے منافق جی جی بولیے جی بولیے کیسے ہیں؟ کیا ٹاپک ہے آج کا؟ ٹاپک میں سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے، اب بھی آیا. میں جی میں سمجھا دیتا ہوں آج کا ٹاپک میں بتا دیتا ہوں. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ چلایا. ذاکر نائک ہے اور بھی بہت سارے اسلامک اسکالر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کے تیوہار میں ہندوؤں کو وش کرنا یا ان کے تیوہاروں کو وش کرنا حرام ہے. وش مت کرو، تم جو ہے شرک کرو گے، کفر کرو گے. اس ٹائپ سے انہوں نے باتیں کہی ہے. تو کیسے ہندو اور مسلمان میں ایکتا ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے فیسٹیول میں ہی جانا وہاں حرام بتا دیا گیا ہے. اور بولا کہ اگر ان کے جی بولیے کمپلیٹ کر لیجیے، میں بولتا ہوں. ہاں، اور دوسری بات ہے ان کی فیسٹیول میں جانا، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کی فیسٹیول میں جانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فیسٹیول کے سارے واقعات کو تم تسلیم کر رہے ہو. اور اس کے فیسٹیول میں رام جی کا، دیوالی کو تم رام جی کو تسلیم کر رہے ہو. دیوالی میں جاؤ گے تو رام جی کو تسلیم کر رہے ہو، راون کو تسلیم کر رہے ہو، رامائن کو پورا مان رہے ہو. تو ان کے تیوہار میں جانے کا یہ مطلب ہے. آتا ہے یہ شرک ہے، نہیں کر سکتے. جی اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ لوگ سب بھائی اور جو بھی ہمارے مسلم بھائی بھی جو بھی ہے وہ یہ بات سمجھ لیجیے کہ جو اسلام ہے نا، اسلام وہ قرآن شریف کا ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آئے تھے، قرآن، دوسرا نہیں ہے. اور آج جو فالو کر رہے ہیں، آج 95% یا جو بھی اتنے بھی مسلمان فالو کر رہے ہیں، وہ 250 سال کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہے نا، وہ نیا نیریٹو اسلام کا، اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ تو ایکچولی ایک کلٹ ہے گروپ کا، انہوں نے نئی چیز گڑی تھی، تو اس کو فالو کر کے تو اس میں سے بھی سب باتیں لکھی ہوئی ہے. ادروائز قرآن میں یہ سب باتیں ہے ہی نہیں. قرآن کے اندر یہ کبھی بھی نہیں کیا کہ اس کو نہیں. بھائی قرآن تو اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے پیس، ہارمنی، اور پیس ہارمنی ہوتا ہے. اور مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ پیس شانتی کا راجدوت. تو بھائی وہ اس میں بھی وہ حرام اس کو حرام نہیں، اس کے ساتھ نہیں جانا، اس کے ساتھ نہیں جانا، یہ تو بات ہوتی نہیں. قرآن شریف تو اس سے دور ہے کہ بھائی ہندو مسلمان، وہ تو بات ہی نہیں کرتا ہندو مسلمان کی. اس کے لیے تو لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی ہندو مسلمان کرسچن کا. وہ انسان کی بات کرتا ہے، وہ انسان کی نفس مطلب ہے. یہاں تک کہ عورت لیڈیز کو بھی الگ کتاب نہیں کرتا، دونوں جینڈر کو بھی ایک ہی کتاب ہے. رجال کا مطلب دونوں آ گئے، 2 پیر پہ چلنے والا جو بھی ہے وہ رجال. تو بات ہی نہیں کرتا. اب حرام حلال کی جو بات ہے، وہ اللہ پاک نے کسی کو قرآن شریف میں اتھارٹی نہیں دی کوئی چیز کو حرام کرنے کی. کسی کو اتھارٹی نہیں ہے، کسی کو اتھارٹی نہیں ہے. کوئی کتنا بھی بڑا اسکالر ہو جائے، اس کو اتھارٹی نہیں ہے حرام حلال کرنے کی. اس کے لیے اگر وہ حرام کر رہا ہے کوئی چیز کو، تو اس کو بہت ایک دم اسٹرانگ پروف دینا پڑے گا قرآن شریف میں سے. تو اگر کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اس کو بولنا قرآن شریف میں کہ بتا، آیت بتا دے مجھے، ختم، سمپل. نہیں، اس میں پھر بات بولتے ہیں نا، وہی قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. پھر اسی کے بعد والے آیت میں آیا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس میں آیا ہے کہ اللہ کو اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت تو قرآن سے کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت پھر سنت سے کرنا پڑے گا. یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، دیکھیے بات کیا ہے، آتی اللہ و آتی رسول. اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی،
वहाँ मोहम्मद नहीं किया ना, मोहम्मद की इताअत करो। अरे मोहम्मद नहीं, वो वो तो तो मोहम्मद ही तो रसूल है। हाँ माँ का नाम नहीं, मोहम्मद ये- आबा नहीं, अहदुम नहीं, मिन नहीं, रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। यही तो जी। मिसकंसेप्शन है ना। ये रसूल अरबी में कहते हैं, रसूल को कहते हैं पैगाम को, मैसेज को। मैसेज जो है ना, मैसेज अल्लाह का, उसको रसूल कहते हैं। और जो इंसान पे रिवील्ड हुआ ना, इसलिए उनको कहते हैं रसूल। क्यों कहते हैं? कि उनके ऊपर अल्लाह का मैसेज रिवील हुआ। तो रसूल की इताअत करना मतलब अल्लाह के पैगाम की इताअत करो, अल्लाह के पैगाम की इताअत करो। और रसूल को इसके अलावा जो जिस पे नाजिल हुआ, आप उसको मोहम्मद बोलते हैं, हम लोग उसको मोहम्मद बोलते हैं, या कुछ भी उनको बोल लो, जो इंसान थे, तो उस पर उन पर नाजिल हुआ, तो उनको अलाउड ही नहीं था इसके ऊपर एक पॉइंट भी, इसके ऊपर एक कोमा भी लगाने का, कि भाई इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकता हो। अगर बोला तो अल्लाह पाक ने बोला मैं तेरी नस काट दूंगा। अच्छा संदीपन जी, मुझे सवाल है इनसे। हाँ फरमाइए। जी बोलिए। इन्होंने अपनी बात जी, का आगाज मुनाफा जी, आपने अपनी बात का आगाज इस तरह से किया था कि किताब जो है वो कुरान है, और आजकल के 90% मुसलमान जो हैं वो उसके 250 साल बाद के लिखे जाने वाली किताबों पे चल रहे हैं, इस वजह से गुमराह हैं। क्या मैं सही समझाऊं? यही आपका स्टेटमेंट था? जी सही से। क्यों उनको बताया गया ना, उनको बता नहीं रहा, उनको कुरान पढ़ा ही नहीं रहे, सही पढ़ा ही नहीं रहे, वो बता ही नहीं रहे, और तर्जुमा गलत किए हुए। ठीक है, वो किताबें जो 250 साल बाद लिखी गई, उससे आपकी कौन सी किताबों की मुराद है? किन किताबों की आप बात कर रहे थे? देखिए, हदीसों? तफसीर लिखी गई नहीं है 250 साल के बाद, 280 ईयर्स के बाद लिखी गई तफसीर। वो तफसीर के बेस के ऊपर फिर लोग ने उसके ट्रांसलेशन किए। अच्छा, तो हाँ। तफसीर इसलिए नहीं माननी चाहिए क्योंकि वो 280 साल बाद लिखी गई। कुरान कब लिखा गया? कुरान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे लिखा गया ना। कहाँ है वो कुरान? ये जो कुरान है वही है, वो सेम है। नबी अकरम खुद जमा करके गए थे कुरान? हाँ, एज इट इज। कोई दलील? देखिए, सूरह सेकंड में अल्लाह पाक कह रहे, उम्मीद कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में, कि अगर आप सच्चे हो तो इसके पहले जैसी एक सूरत लेकर आओ। तो उसके पहले एक सूरत कौन सी है? और हम तो की है ना, सूरह फातिहा। ठीक। फिर सूरह हूद आती है, सूरह 11, उसमें कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो इसके पहले की 10 सूरत लेकर आओ। फिर बस, तो ये प्रूफ है ना, ये सेम कंपोज किया हुआ है, सेम एज इट इज है। ये कैसे प्रूव हुआ? वो बताया ना, उसमें बताया कि वाइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिहिम मिस्लिही सूरतिहिम मिस्लिही। वो आयत नहीं, दूसरी आयत है क्या, कि इसके पहले वाली सूरत इसकी जैसी एक सूरत लेकर आओ। एक सूरत मतलब लेकिन इससे वही हाँ, लेकिन इससे प्रूफ कैसे होता है कि ये कुरान मोहम्मद साहब ने कंपाइल किया? प्रूफ कैसे होता है? बस ये प्रूफ, यही तो प्रूफ है। ये किया ना कि भाई कंपोज किया हुआ इस तरह से। मींस आप क्या बोलते हैं, लिखा उन्होंने कैसा है? लिखने की बात हो रही है, कंपोज करने की बात हो रही है? नहीं, मुझे आप बताएं कोई कुरान की आयत कि जिसमें ये लिखा हो कि मोहम्मद साहब के ऊपर जो कुरान, अभी तो आपने सूरह हूद की बात की, सूरह हूद, चलो इससे इतना तो साबित हो जाता है कि नबी ने सूरह हूद तक कुरान मुकम्मल किया था, हालांकि इससे ये भी साबित नहीं होता, लेकिन चले मैं मान लेता हूँ। बाकी का कुरान की क्या दलील है? भाई कुरान की दलील क्या उन पर नाजिल हुआ है, उन्होंने लिखा है, लिखने की बात करा? क्या समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन नहीं समझ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने सूरह हूद की एग्जाम्पल दी, सूरह बकरा की एग्जाम्पल दी, चले कंपोज की बात की, इससे यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सूरह बकरा जो है वो कंपाइल करके गए थे और सूरह हूद तक कंपाइल करके गए थे कुरान। बाकी का कुरान की कंपाइलेशन की दलील किधर है? नहीं, तो ये प्रूव हो गया ना कि ऐसे ही कंपोज किया, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसे डिजीज है ऐसे ही कंपोज हुआ, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। नहीं, पहली बात तो इससे कंपोजिशन प्रूव हो ही नहीं रही। आपने जो दो आयतें दी हैं, इससे कंपोजिशन प्रूव हो ही नहीं रही। तो आप आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कोई नुस्खा चाहिए, जो मैं उस वक्त तक डेट बैक कर लूं। है कोई नुस्खा आपके पास दुनिया में मौजूद? अभी आपको फ्यूचर के अंदर, अभी जो फ्यूचर का उसमें मैसेज है वो अभी हो रहा है। आपको माय क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी फिजिकल एनॉटमेंट ऑफ कुरान फ्रॉम द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाँ, पूरा जो फर्स्ट कॉपी हो तो है ना, फर्स्ट कॉपी तो यहाँ पर तुर्की में भी है, लंदन में भी है फर्स्ट कॉपी। तुर्की में जो है वो सिर्फ सूरह मरियम की कुछ आयतें हैं।
पूरा हाँ, और कुरान जो नहीं भी है हो वो। तो उस टाइम पे जो भी बचा हुआ जो भी मिला अभी वो लोग जमा करके रख रहे हैं। जर्मनी में भी है, मतलब आप जर्मनी कह रहे में हैं भी नबी ने मिला है। कुरान जमा किया था, वो बचा नहीं, लेकिन नहीं बचा, वही मेमोराइज था लोग को। देखो ये एक ही किताब है मेमोराइज था दुनिया या के अंदर। कंपाइल्ड था? सुनिए 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 मेमोराइज प्लीज, था या कंपाइल्ड था? नहीं सुनिए प्लीज। मेमोराइज ये दुनिया की एक ही किताब है जो नहीं दिमाग सर, से पेपर बाइबल पाए। मैंने हजार पादरियों को देखा है, बाइबल लफ्ज ब लफ्ज याद होती है, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट। ये तो आपका दावा है कि दुनिया की वाहिद किताब है जो याद हो अरे जाती है। बाइबल ऐसी बात बाइबल नहीं तो है। खुद बाइबल सुनिए, इंडिया का बाइबल एक तो बच्चा खुद है, इंडिया एक बच्चा, उसने पूरी इंसाइक्लोपीडिया याद की है। नहीं, बात सुनिए, मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बाइबल तो अकॉर्डिंग टू लुक, एक और तो खुद ने बाइबल लिखा है छोड़े, अकॉर्डिंग टू लुक। हाँ, मुझे ये बताएं कुरान मेमोराइज था या कंपाइल्ड था? मेमोराइज था भाई, मेमोराइज करके भी कंपाइल नहीं था, मतलब मेमोराइज कंपाइल था। था, मेमोराइज करके वो आफ्टर के टाइम भी कंपाइल हो गया था। नहीं, इसकी कोई दलील? अब दलील उसकी क्या, कोई ये किताब ऐसी है कि आप इसकी ऐसी कोई चीज नहीं, नहीं ला क्योंकि सकते मेरे ना पास वो। इसके खिलाफ दलीलें मौजूद है ना, इसलिए कह रहा हूँ। मेरे नहीं, पास इसके खिलाफ तो दलील, हजार हाँ, इसके खिलाफ तो हजार दलील हो मौजूद सकती है। जरूर है, देखिए लेकिन आपके आप आपके पास दूसरी अपने दलील आप आपको सुने, नहीं, मेरी बात दूसरी दलील सुने, आपको बताऊं, मेरी बात आपको सुने। सुनिए, आपके पास अपने हक में बेशक दलील नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके खिलाफ बहुत दलीलें हैं। नहीं वो तो आपके तरफ से आप जजमेंट पास कर दो कि मेरे पास दलील है, ये किताब इतनी नहीं, पुरानी है। मैं कौन होता हूँ जजमेंट पास करने हाँ, वाला? मैं आपको आपके तो स्क्रिप्चर से अभी दिखाऊंगा, यार मैं देखिए आपको कोई भी बुखारी से किताब दिखाऊंगा, आप मैं आपको सुनिए, मुस्लिम से दिखाऊंगा। आपने नहीं, आपका नाम क्या? अमित जी बोल रहे क्या? वो कौन बोल रहे? मेरा नाम आप कर अलीशा। लें, मेरा आप, हाँ, कुछ भी नाम कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मैं आपको अपना आइडिया, अपनी जजमेंट नहीं दूंगा। मैं आपके सामने हदीस रखूंगा और फिर आपको बोलूंगा आप जज करें। भाई हदीस देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हदीस ऑथेंटिक नहीं है ना भाई कोई। आप सही बुखारी को कुरान कह कैसी रहे कोई हो। ऑथेंटिक नहीं अच्छा, है। आप ये कह रहे हैं कि सहा सत्ता के जितने भी मुसन्निफीन हैं वो अब ये गलत दावा करके गए हैं कि हम सही हदीस जमा कर रहे हैं, और आज आके मुनाफ खान साहब उस दावे को गलत साबित करेंगे कि नहीं, ये सही हदीस जमा नहीं मैं करके गए। आपको उसका प्रूफ देता हूँ ना, आपको उसका प्रूफ भी देता हूँ। वो आप अरबी, मुझे आप अथॉरिटी, अरबी आप कहते नहीं हैं कि आप अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, आप नहीं कहते हैं आप सुनिए बुखारी को तो, चैलेंज कर रहे हैं। अरे हाँ चैलेंज करता हूँ, मैं तो ओपनली चैलेंज करता हूँ, मैं तो मौलवी को ओके, भी चैलेंज तो करता हूँ। आपके पास क्या सनद है बुखारी को चैलेंज करने की? अरे भाई ये तर्जुमे से पता चलता है ना, तर्जुमे से। अरबी से आप तर्जुमा करोगे ना, अगर इफ यू नो अरबी, इफ यू नो एडवांस अरबी, नॉट 1-to-1 अरबी, ओके, इफ यू नो एडवांस अरबी इजीली यू कैन कैच इन। बताई ना तुम है माहाजा बताई ना तुम क्या? अभी आप कह रहे हैं अरबी में बात, मैंने सोचा अरबी में बात करेंगे अब से हम। नहीं, आपको तो अरबी आती है ना? हाँ, वो बात करने की अलग चीज है भाई। अच्छा, अरबी ठीक है, की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, बात ठीक कर सकते हैं अरबी में, कर सकते, क्या प्रॉब्लम है आपका ठीक अरबी है, का? ठीक। आपको लेकिन अरबी आती है? देखिए ये, हाँ आती है, इतनी फ्लुएंट नहीं बोलता लेकिन बोलता हूँ। अच्छा, तो मुझे जरा अरे गर्दान सुना दीजिए। मुझे आप कुरान क्या? की गर्दान सुना दें, कुरान की गर्दान सुना दें आप मुझे। गर्दन क्या? अच्छा, गर्दान तो इसीलिए आपसे फिर आपकी सनद मांगी जा रही है ना झुटलाने की। ऐसे तो कोई भी उठ के झुटला नहीं, गर्दन क्या? कोई आया सुनाओ क्या? हमद का गर्दान या दरवा का ही गर्दान सुना, जरावा का ही सुना दीजिए। दरवा नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रहे, समझ नहीं पा रहा। ये तो बेसिक्स है अरबी के। मेन बात चीज है, देखो मेन चीज है अल्फाज को, आयत को समझना, अंडरस्टैंडिंग। वही मैंने, बाकी कोई मेन नहीं है। आप कैसे पढ़ो, कुछ भी करो, ये सब बातें हैं। अच्छा, मैं चलिए ये बता देता हूं, मैं आपको दलील देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब, या ये जो कुरान है इसमें जो है, इसमें कमी बेशी हो गया है। कैसे? कुरान खुद कहता है, सूरह बकरा आयत नंबर 2 में, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ज़ालिका, उस किताब में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। यानी इससे ये बात पता चल रहा है कि ज़ालिका, हाज़ल किताब नहीं बोला, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। हाँ सही है, कि सही उस किताब में, आप करेक्ट हो। हाँ, उस किताब में correct वो कौन सी किताब है? कि बल हुआ कुरान मजीद फी लोहे महफूज, वो कुरान जो लोहे महफूज में अल्लाह ने सुरक्षित रखा है। यानी दुनिया में जो कुरान है वो सुरक्षित नहीं है, इससे साबित हुआ। दुनिया में कुरान, ये तो प्रिंट कॉपी है ना, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। वो तो सही बात है ना।
वो कुरान तो तुम्हारे अल्लाह पाक ने जो किताब की बात कर रहे हैं, वो जिसको उस किताब में से सबको अलाउड किया है नॉलेज लेने का। अच्छा, रजम की आयत कहाँ है? कुरान में है रजम की आयत? कौन सी रजम? रजम की आयत यार रजम वो सुनिए, मैं हाफिज तो नहीं हूँ, मैं बिना थोड़ी आपको मैं हाफिज हूँ कुरान का। हाँ, ये इमाम बुखारी कसीर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है कि रजम की आयत हजरत आयशा के तकिए के नीचे थी, बकरी आया और खा गई वो आयत। अरे भाई ये सब सुनिए, वो भाई सुनिए ये हदीसों की तो सब ये सब स्टोरी है भाई। वो तो कोई मानता ही नहीं था भाई, जो मानते लेकिन मुनाफ खान साहब आपके पास जो मानते हो पागल है। सुनिए अरे अली भाई सुनिए आपको मुनाफ खान साहब सुनिए, मैं समझ गया हदीसें झूठी हैं, मैं समझ गया घड़ी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके पास क्या अथॉरिटी है इसे जुटलाने की? कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई कुछ हो जिसने कोई सनद ली हो, वो झुटलाए, समझ में आता है। मैं आपसे सिर्फ आपकी अरे भाई सुनिए 1400 साल पहले जो लिख कर गए, आप उनको जानते हो? आपको पता है उन्होंने सनद लिए? ये लोगों ने लिख दिया है। मोहम्मद को भी कोई नहीं जानता ना सर, वो भी 1400 साल पहले आया, उसको भी देखा थोड़ी किसी ने। अरे कुरान प्रूफ है ना भाई, कुरान जैसा बना के लाओ ने। उसी का तो प्रूफ मांगा जा रहा है आपसे। हाँ, चलिए मैं बना लेता हूँ, कुरान दिखा दें। मैं बना देता हूँ, सुनिए मैं बना देता हूँ। देखिए, ये मेरे उस्ताद 1992 में मेरे उस्ताद मुफ्ती महबूब अली उर्फ पंडित महेंद्रपाल आर्य जी, वो क्या बताते हैं? कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। मेरे उस्ताद ने शुरू किया बिस्मि ओमिल हय्युल कय्यूम, शुरू करता हूं मैं ओम के नाम से। ज़ुकाई में भी ज़ात क़ौल रब्बुल मुस्लिमीन व खालिकुश शयातीन फी किताबिल कुरआन लिन्नास लअलमीन फतुह बिसूरतिहिम मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फजर्रिबू बिईमान वला तकून मिनल काफिरीन व ओम यशहदु अन्नी मिनस सादिकीन व इन कुंतुम फी शक्किम मिम्मा आतिना खलीफतिना फातु बुरहानकुम असअलकुम मिन रब्बिकुम इन कुंतुम मुमिनीन। कि मेरे उस्ताद ने कहा कि शुरू करता हूं मैं ओम के नाम से, बिस्मि ओमिल हय्युल कय्यूम, जो हमेशा हमेशा का रहने वाला है। ओम कभी फना नहीं होता। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व मकल्पत, ओम फना नहीं होता। लेकिन अल्लाह के चेहरे को छोड़ करके, उनका सारा बॉडी पार्ट्स कयामत के बाद नष्ट हो जाएगा। कुरान इसकी गवाही देता है। हाँ, फिर देखिए शुरू करता ओम के नाम से। ज़ुकाई में भी ज़ात क़ौल रब्बुल मुस्लिमीन, कहा मुसलमानों के रब ने, व खालिकुश शयातीन, शैतान के पैदा करने वाले ने, कि तुम हरगिज नहीं ला सकते नकल कुरान का। ये देखो मैं लेकर के आया हूँ 10 आयत नकल का कुरान का, मेरा ओम साक्षी है, मेरा ओम गवाह है, तुम मेरे को झुटला करके दिखाओ। नहीं देखिए सुनिए, अभी आपने जो तर्जुमा किया ना इसका, उसमें कितनी गलतियां की आपने। अच्छा, एक तो ओम देखिए अल्लाह का, सुनिए एक मिनट आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, अभी आप मुझे समझा नहीं दीजिए। देखो अल्लाह कोई सेफ नहीं है भाई, वो कोई इंसान नहीं है ना कोई उसका फिगर है। नहीं, लेकिन एक मिनट सर, इनकी तर्जुमे की क्या गलतियां थी? तर्जुमा अब इसका आपको इसका सुनिए इसका अभी आपको इसका जो आपने तर्जुमा, तो चलो आपने जो भी बोला उसका गलत तर्जुमा किया, खलक का भी गलत नहीं, किया, लेकिन अभी आपने गलत कहा ना तर्जुमा, बिस्मिल्लाह का भी रॉन्ग किया तर्जुमा। मैं तो वही बोलता हूँ ना, तो तर्जुमा अब ये जो आपने एक तर्जुमा किया, आप गलती बताएं ना, पॉइंट 1 नंबर 1 गलती बताएं, नंबर 1 एक करके गलती बताएं उसके तर्जुमे की, एक बिस्मिल्लाह। एक इजाजत चाहता हूँ मुनाफ खान जी, आपने अभी एक बहुत ही बड़ा क्लेम रख दिया है कि आपके अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई शेप नहीं है। मैं अगर आपको कुरान से ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ, उनका शिन, उनकी आंखें, उनका चेहरा दिखा दूं आयतों से, तो आप क्या कहेंगे? या तो आपको मानना पड़ेगा कि वो आयत सुने मेरी बात, पहले आप बात नहीं खत्म करने दे रहे हैं आपको। आपको यह तो मानना पड़ेगा कि जो बात आपने कही है, आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि जो बात आपने कही है वो बात आपने अज्ञानतावश कही है, आपने दरअसल जो है अननोइंगली कह दिया है। या आपको ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये सारे शेप वगैरह हैं, या आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी कुरान झूठ बोल रही है। बताइए इन 3 ऑप्शन में से किस ऑप्शन पे चलना चाहिए? ओके बताता हूँ। देखिए सुनिए, अभी आप जो उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, आप लिटरल ट्रांसलेशन ले रहे हैं,
वो लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो लोगों को फिर समझाने कुरान के में लिए। ये क्यों लिखा हुआ है कि सुनिए ये भाई, जिक्र सुनिए जो भाई, है? सुनिए ना नहीं भाई, सुनिए। अभी देखो, आप बीच में बोले, अभी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, पूरा खत्म कीजिए। हाँ, वो उसका लिटरली ट्रांसलेशन नहीं होता, ये सब मेटाफोर है। मेटाफोरिकली आपको ओके, समझना वो पड़ेगा। ओ माय वो गॉड, कुरान की, अभी सुनिए, आगे सुन लीजिए मेरे, आगे सुन लीजिए। ये अरबी की जो कुरान की जो अरबी है ना, इसकी ट्रांसलेशन है ना, ये स्क्रिप्ट एक है, लेकिन इसका जो मतलब है ना, उसके सेवन अंडरस्टैंडिंग है इसकी। आपको आहिस्ता लेवल पर ये कुरान में तो कहा आप लिखा है? literally- ये सब कुछ हाँ, कुरान में आप- लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं? ये कुरान से पता चला है आपको जो आप बता रहे हैं सब कुछ? सभा समावाद क्या है भाई? सभा समावाद क्या है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आप सब कुछ बता रहे हैं ये कुरान में लिखा हुआ है? तो सभा समावाद क्या है भाई? समावाद लिखा है ना कुरान में। समावाद किधर आ गया बीच में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो सात समावाद की तो बात कर रहा हूँ। आप कुछ समावाद का लिटरल मतलब होती क्या है? हैं, एक सेकंड, कुछ लिटरल होती हैं, कुछ मेटाफोर होती हैं, 7 हुरूफ हैं, 7 मतलब है, ये सारी बातें कुरान में लिखी हैं? 7 नहीं है हरूफ तो। की बात सर, हाँ। मुनाफ खान जी, 7 हाँ, हरूफ की बात समावाद, सही अरे 7 बुखारी की समावाद हदीस उसका में भाई, लिखी अरे गई। सुने अरे यार, भाई, 7 हुरूफ की बात हदीस में है भाई, आप अरे भाई, नहीं, अरे मेरी बात पूरी होने दी। अरे भाई है ना, वही होता है भाई, नहीं इस्लाम में होता होता है, इस्लाम में होता है। Of do's and don'ts which are called halal and haram, and the book that establishes these rules is called Quran, and Quran was revealed on Prophet Muhammad, who is termed as the last prophet or the seal of prophet, and this all concludes Islam. देखिए इस्लाम का मतलब पहले जान लेते। इस्लाम का मतलब पीस कोई साबित कर ही नहीं पाएगा। इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। गूगल ट्रांसलेशन खोलिए, Submission गूगल होता है। ट्रांसलेशन खोलिए। गूगल ही खोला है भाई। हाँ, नहीं, ट्रांसलेशन इस्लाम meaning। खोलिए। आप तो मैं इतना ट्रांसलेशन खोलूंगा भाई। कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, सर्च करो, गूगल करो, अरे वाह, नहीं, ट्रांसलेशन खोलिए, मैं आपको बताता हूँ क्या देना बताऊँ चाहिए आपको। आपका कॉन्फिडेंस को। अरे ट्रांसलेशन खोलिए ठीक है, भाई। मैं चलिए गूगल ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। रुकिए, ट्रांसलेट अरबिक टू, रुकिए, देखिए सब आपके सामने हो रहा है। देखिए आप यहाँ आप इंग्लिश सुनिए, ले। एक मिनट इंग्लिश टू अरबी करिए, इंग्लिश टू अरबी करिए। ये रुकिए ना, क्या मैं मुश्किल कहा है, मैं दिखा देता हूँ ना पहले। है क्या दिखा रहा है? इंग्लिश टू अरबी करिए, इंग्लिश टू अरबी करिए। इंग्लिश टू अरबिक क्यों? अरबिक टू इंग्लिश ना। हाँ हो जाएगा वो, इस्लाम अरबिक का- टू इंग्लिश टू अरबिक करिए भाई। हो जाएगा वो, एक क्लिक से मैं हो आपको कर जाएगा। देता हूँ ना अभी। इस्लाम का मतलब इतना भी इस्लाम है। का मतलब, लफ्जी मतलब इस्लाम का दोनों अरे भाई जबानों सुनो, में लफ्जी सिर्फ मतलब नहीं होता भाई साहब, लफ्जी मतलब नहीं होता। जो इस मैं आपको कह रहा हूँ इंग्लिश करिए ना, मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी मैं आपको हाँ, बताता हूँ। वही तो चलिए। किया हुआ है भाई, वही तो किया हुआ है मेरे भाई। अरे भाई आप इंग्लिश, चलो अभी उसको निकालिए, अभी वो कैंसिल कीजिए। चलो कैंसिल कर दो, हाँ, कैंसिल हो अब गया। लिखिए आई नीड, आई नीड इस्लाम लिखो। नहीं लिखिए आई नीड पीस इन माई लाइफ। अरे उसमें तो असलमा, यहाँ असलमा शब्द आया है क्या? भाई आप कौन है लोग रे? देखो, अरबी में इस्लाम, इंग्लिश में पीस, अरबी में इस्लाम। पीस के नहीं, बिना आप लोग नहीं रह अरे ये सकते। नहीं, असलमा शब्द है। इस्लाम सलाम है, इस्लाम नहीं, अल ये सलाम इस्लाम है। नहीं लिखा हुआ है, सलाम लिखा है, सलाम। सलाम इस्लाम में इस्लाम आ गया लफ्ज में। हाँ, वो सलाम इस्लाम का वही होता है भाई, नहीं इस्लाम में होता है, इस्लाम में होता है। नहीं होता। ये सलाम लिखा हुआ है, इस्लाम नहीं लिखा हुआ, सलाम लिखा हुआ है ये। वो भाई आपको यही कहना पड़ेगा, आप पीस के बिना नहीं रह सकते। इसको नोबडी अरबी में, एक सेकंड यार, इसको अरबी में सुनिए, ये जो पूरा जुमला लिखा है इसको पढ़ के सुनाओ। ये जो अरबी में जुमला लिखा है इसको पढ़ नोबडी के कैन सुनाओ। लिव विदाउट पीस, मुनाफ नोबडी खान, कैन लिव ये जो विदाउट जुमला पीस। अरबी में लिखा हुआ है इसको पूरा पढ़ के सुनाओ। क्या निकला है उधर? ये अरबी में जो जुमला लिखा है इसको पूरा पढ़ के सुनाओ। अच्छा, एक सुना दीजिएगा, एक मिनट सब लोग साथ रहे। एक अच्छी बात आई है मेरे दिमाग में, इन्होंने जैसे अस्सलाम को अल सलाम को इस्लाम कह दिया, तो भाई आपको मालूम है अरबी का रूट? सुनिए, अरबी का रूट है ना, अरे मेरी बात सुनिए ना यार, अब क्यों आप जब समझ जाते तो क्यों बीच में बोलते हैं? तो मुझे मुनाफ खान जी बताइए, मुनाफिक का क्या मतलब होता है? मुनाफिक का मतलब जो होता है, तो उस हिसाब से मुनाफ खान का मतलब भी वही लिया जाए, यानी आप मुनाफिक हैं।
आप मुझे गाली बोलो, मैं माइंड नहीं, आप मुझे गाली आप मुझे गाली बोलो, आप मुझे गाली बोले, मैं माइंड नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, यू हैव राइट, यू हैव फुल राइट। मुनाफिक गाली नहीं होती सर मुनाफिक गाली नहीं, तो मुनाफिक का मतलब होता है हिपोक्रेट। अगर आपने अल सलाम को इस्लाम बोल दिया तो मैं मुनाफ खान को मुनाफिक क्यों नहीं बोल सकता? नहीं भाई, सलाम रूट वर्ड है ना उसका, सीन लाम मीम रूट वर्ड है, सीन लाम मीम रूट वर्ड से मतलब निकलता है अरबी का। भैया सबमिशन टू द गॉड ये होता है इस्लाम का मतलब। अगर आप नहीं भाई सर, ये तो बना दिया, ये तो मौलवियों ने बनाया भाई, मौलवियों ने बनाया है, वो उसका मतलब नहीं है। आप फिर आप मैं भाई मैं आपको बताऊं, सुनिए आपको, देखो सिंपल बात बताऊं आपको, एक मिनट आपको सिंपल बात बताऊं, प्लीज सुनिएगा। नोबडी के अल्लाह है ना, अल्लाह ईश्वर, जो आप ईश्वर बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, ब्रह्मा बोलते हो, है ना, ईश्वर है ना, ये एक एनर्जी है, वो लिविंग एनर्जी है, ओके। इस्लाम जो है लिविंग एनर्जी, हाँ लिविंग एनर्जी, वो जो इस्लाम है, सुनिए इस्लाम उसका एक मिनट उसका एट्रीब्यूट है सलाम। समझना चाह रहा हूं, आपका पहले आर्गुमेंट तो समझ लूं। नहीं आप मुझे कंप्लीट कर लीजिए उसका, बोलने दीजिए पहले, कोई नहीं। हाँ, तो उसका एट्रीब्यूट सलाम है। तो सलाम वो क्या कह रहा है मालूम है? सब इंसान को, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा है, वो सारे इंसान की बात कर रहा है। बोलता है सब पीस में आ जाओ तुम लोग, वो ये चाहता है तुम लोग पीस में आ जाओ, बस सिंपल एज दैट, दूसरा कुछ नहीं चाहता हो। और पीस में आ जाओ, पीस हर इंसान की जरूरत है, पीस के बिना इंसान नहीं रह सकता, ये इंसान की गिजा है, इंसान की एनर्जी है, तो ये नहीं रह सकता। अब जो लोग नहीं समझते, वो लोग कुछ बातें करते रहते हैं, उनको उनके लेवल के सबकी बातें हैं, तो सबको तो अपने कुछ नहीं बोलने जा सकते ना भाई। जो समझता है वो समझता है, नहीं समझता वो अप टू यू। मैं बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ आपकी। आपने जो बात बोली है ना, मेरे दिल को बहुत पसंद आई है। क्या आप फिर से बोलेंगे कि क्या आपने यही कहा कि सारी जो फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं वो एक ही है? इसका मतलब है कि अगर हम उन्हें ब्रह्मा कहें या अल्लाह कहें, ये दोनों बातें सेम है? क्या आप ये कह रहे हैं? हाँ एक ही है। अरे भाई सुनिए अभी आप क्या मानते हो? आपने शिर्क कर दिया मेरे भाई, आपने शिर्क कर दिया। तो भाई वो शिर्क नहीं होता, सिर्फ आपको पता है शिर्क क्या होता है? आपको पता है शिर्क क्या होता है? हाँ, एसोसिएशन ऑफ एनीवन अदर देन अल्लाह। नहीं मतलब नहीं, सुनिए अभी आपको मैं कहूँ कि आपने ईश्वर को देखा है? आपने देखा है? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपने देखा है? नहीं देखा ना? नहीं देखा है मैंने तो। अरे भाई वो देखो, उसका कोई शेप ही नहीं, आप कैसे देख सकते हो? देखा है, नहीं चलो शेप है ना भाई। अल्लाह के 3 हाथ हैं, सुने, अल्लाह के 3 हाथ है, एक। अरे भाई नहीं है, वो सब बातें, वो बातें नहीं करो, दूसरी किताबों की बातें नहीं करो, जो रियल मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं कुरान की बात। वो मेटाफोर है, वो नहीं उसकी नहीं है। सुनिए देखो अल्लाह क्या, सुनिए अल्लाह क्या कहता है कुरान से, मैं तुम 3 हो, मैं 4 हूँ, तुम चौथा हो, मैं 5वां हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहाँ हूँ। मुझे बताइए उसका मतलब क्या हो गया? एक फैक्चुअल बात करते हैं सर, एक फैक्चुअल बात करते हैं, थोड़ी देर जलबी को साइड। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق